नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। यूपी में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की कार पर नामालूम अफराद ने की फायरिंग। बैरिस्टर अवैसी रहे महफूज। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में दाखिले से रोक दिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के तमाम तालीमी इदारों में इस माह की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखने की दी हिदायत। आजम खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से मुल्क के दस्तूर में तरमीम के बयान पर केसीआर के खिलाफ जहीराबाद और भैंसा में एहतजाज। केसीआर का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। गांजे की काश्त करने पर किसानों से अराजी जब्त कर ली जाएगी, तेलंगाना हुकूमत का इंतबाह। जहीराबाद में पुलिस मुहिम में इजलास आम में डीएसपी जहीराबाद शंकर राजू का खिताब। अब पेश है खबरों की तफसीलें। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को तनक़ीद का निशाना बनाने और दस्तूर में तरमीम के मुतालबे को मुज़ीक़ाए क़ायस करार दिया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि हुज़ूराबाद में बीजेपी की कामयाबी और तेलंगाना में बढ़ती हुई बीजेपी की मकबूलियत से केसीआर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और इनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म और मरकज़ी हुकूमत के अलावा बीजेपी को तनक़ीदों का निशाना बनाते हुए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा, जिस दस्तूर ने अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने में ताउन किया और जिस दस्तूर ने इन्हें वज़ीर आला बनाया है, वो इसी दस्तूरी ओहदे पर फायज़ होते हुए दस्तूर की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर को अंदाज़ा हो गया कि तेलंगाना में टीआरएस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गौरव मुख्यमंत्री गारू ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక దేశ ప్రధానమంత్రి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఉపయోగించేటువంటి పదాలు కానీ మాట్లాడేటువంటి భాష కానీ ఏ రకంగా ఎంత హుందాగా ఉండాలో ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గత కొన్ని రోజులుగా భారతీయ జనతా పార్టీ పైన, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం పైన, కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన దిగజారి భాషను ఉపయోగిస్తూ అడ్డగోలుగా నైతికంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అది ప్రధానంగా హుజూరాబాద్ ఎన్నికల ఫలితాల మరుసటి రోజు నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, టిఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందినటువంటి తెలంగాణ మంత్రులు ఒక పథకం ప్రకారము కుట్రపూరితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పైన విషం జల్లేటువంటి కార్యక్రమానికి ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకొని పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతిరోజు వరుసల వారీగా కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు, వంతుల వారీగా మంత్రులు, అవసరమైనప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పుడు ప్రచారము। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कार पर उत्तर प्रदेश में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। बैरिस्टर अवैसी ने ट्विटर के जरिए बताया कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई, 4 राउंड फायर किए गए
انہوں نے کہا وہاں 3 سے 4 لوگ تھے، سب بھاگ گئے اور ہتھیار وہیں چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا میری گاڑی پنکچر ہو گئی تھی لیکن میں دوسری گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ کہا ہم سب محفوظ ہیں۔ میرٹھ میں پدیاترا ہو گئی، ہم نے میڈیا آڈیا سے آپ کے ذمہ دار تھے بات کی، اور پھر وہاں سے ہم کٹھور گئے۔ کٹھور سے میرے خیال سے ہم نے 3 بجے سے 3:45-3:50 تک ہم نے وہاں پر پیدل دورہ کیا۔ پھر ہمارے نعمان روفل صاحب کے گھر میں ہم گئے، وہاں پر تھوڑا بہت لنچ کا چائے کا انتظام تھا، کر کے نماز پڑھے، اور وہاں دلی آنے کے لیے جب ہم اس پلکھوا کے پاس جو ٹول گیٹ ہے وہاں پر ہم پہنچے، ہمارے ساتھ 4 گاڑیاں تھیں۔ ہماری گاڑی کے سامنے حاجی صاحب کی ٹاٹا سفاری تھی جو پیچھے آپ کے، اور ہماری گاڑی کے پیچھے اور 2 فارچونر تھے۔ تو جیسا ہم ٹول گیٹ کے قریب گاڑی سلو ہو جاتی ہے، بیریکیڈ ہوتا ہے، تو ایک بڑی دھام سے آواز آئی، تو ہم بولے کیا ہوا؟ پھر دوسری آواز آئی، تو ہمارے ساتھ جو گاڑی میں ہمارے دوست گاڑی چلا رہے تھے یامین خان، بولے بھائی حملہ ہو رہا۔ تو ہماری گاڑی سے انہوں نے بڑی کوئک تھنکنگ سے اس گاڑی کو پش کیا، یہ سفاری کو، اور وہاں سے نکلے۔ پھر اور ایک آواز آئی، جب ہم نکل رہے تھے ایک اور آواز آئی، تو میرے خیال سے 3 سے 4 راؤنڈ کی فائرنگ ہوئی۔ ہماری گاڑی کے لیفٹ سائڈ کے اوپر 2 ہولز کے نشان ہیں، ایک گولی شاید، اور ایک نشان ہے لیفٹ سائڈ مڈ گارڈ کے اوپر۔ ہم جب گاڑی سے آگے بڑھے تو کیونکہ ہماری گاڑی سے گاڑی کو ہم نے پش کیا، مارا، رائٹ سائڈ کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ پھر وہاں ایک فلائی اوور ہے، وہاں پر گاڑی روک کر ہم اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور دلی کو آگے، کیونکہ ہم کو لگا کہ ریکی کر رہے تھے، فالو کر رہے تھے ہم کو۔ ہمارے جب یہ حملہ ہو رہا تھا ہمارے پیچھے جو فارچونر تھی جس میں ہمارے ایکس میئر ماجد تھے، اس کے ڈرائیور نے ایک شوٹر پر گاڑی چڑھا دی ایک پر، جو ریڈ ہوڈی پہنا تھا، 2 لوگ تھے، ریڈ ہوڈی پہنا تھا، ایک وائٹ جیکٹ۔ تو جو ریڈ ہوڈی پہنا ہوا تھا اس کے اوپر گاڑی چلائی، اس کے پیر پر چلائی، وہ گرا۔ تو جو وائٹ جیکٹ پہنا تھا وہ الٹا ان 2 فارچونر پہ گولی چلایا۔ تو اب ہماری تھوڑی دیر پہلے ایڈیشنل ایس پی وہاں سے جو ہیں ذمہ دار، ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہاں سر، آرمز جو استعمال ہے وہ بھی ملا، ہتھیار بھی ملا، اور ایک شوٹر پکڑا بھی گیا۔ تو ہماری الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ گزارش ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ جانچ کروائی جائے، اور یہ کون ہے لوگ، کس کا دماغ ہے اس کے پیچھے، اور آخر کیوں یہ حملہ ہوا، کس نے یہ کانسپریسی کی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سنیے، اور ہم اسٹیٹ گورنمنٹ اور مودی گورنمنٹ دونوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ جانچ کروائیں، اور اس کے پیچھے دماغ کس کا ہے۔ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹول گیٹ کے اوپر یہ لوگ 4 راؤنڈ فائرنگ ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر کرتے ہیں؟ ہم تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا، ہم کو خیریت سے ہیں، مگر اللہ بچانا جب چاہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر آج یہ ہوا ہے، ابھی دیکھیے ہم تو کیا امید کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے دیکھیے ہم کو کئی بار لوگ دھمکی دیتے ہیں، کئی بار بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ پریاگ راج میں جو دھرم سنسد ہوا وہاں پر بھی ہم پر کافی گالیاں دی گئیں، اور پھر آپ کے ہمارے گھر پر ابھی ہم کئی مرتبہ حملہ ہوا۔ تو اب یہ سرکار کا کام ہے کہ انڈیپینڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کا صحیح طریقے کو پکڑا جائے۔ پارلیمنٹ ابھی چل رہا ہے، پارلیمنٹ میں بھی یہ کوشچن اٹھانا چاہیں گے آپ، بات کرنا چاہیں گے؟ ضرور، پارلیمنٹ ہے، اسپیکر صاحب سے ملیں گے، اسپیکر صاحب سے بات کریں گے۔ ہم الیکشن کمیشن کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں، اور سرکار جو اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ سے بھی کریں گے، مگر الحمدللہ اللہ کرم میں خیریت سے ہوں۔ پڑوسی ریاست کرناٹک کے ایک اور کالج میں حجاب کے مسئلے پر مسلم لڑکیوں کو کالج میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ کونڈاپور کے پی یو کالج میں حجاب کا تنازعہ جمعرات کو بھی جاری رہا، جب پرنسپل نے کالج کے دروازے کے قریب حجاب پہنے طالبات کو داخلے سے منع کر دیا۔ طالبات نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ حجاب پہننے پر اچانک پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے، کیونکہ کالج میں اس سے پہلے ایسے کوئی رول نہیں تھے۔ پرنسپل نے متعلقہ طلبہ سے کہا کہ وہ حجاب کے ساتھ کلاسز میں نہ آئیں۔ انہوں نے طلبہ سے کہا کہ وہ حجاب اتار کر کلاس میں حاضر ہوں۔ کالج کے گیٹ پر پرنسپل اور مسلم طالبات کے درمیان بحث ہوئی، اور پرنسپل نے طالبات کو باہر کرتے ہوئے گیٹ لگا دیا۔ پرنسپل نے کہا کہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ سرکولر ریاست بھر میں لاگو ہوتا ہے۔ اسی دوران او ڈی پی کے رکن اسمبلی رگھوپتی بھٹ، جو کالج کے ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے، نے کہا کہ محکمہ تعلیم نے کلاس رومز میں ڈریس کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر مسلم طالبات اپنے مطالبہ پر قائم رہتے ہیں تو وہ آن لائن کلاسز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
तेलंगाना में कोविड की सूरत हाल पर आज रियासती हाईकोर्ट में समाअत हुई। हाईकोर्ट ने रियासत के तालीमी इदारों में इस माह की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखने की हिदायत दी। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो शहर में बाज़ारों और रेस्टोरेंट्स जैसे रश वाले इलाकों में कोविड के क़वानीन पर अमल आवारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। अदालत ने यह भी पूछा कि हुकूमत ये बताएं कि कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि समाका सरलम्मा यात्रा में कोविड क़वानीन पर अमल किया जाए। अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा कि समारता मूर्ति सदी तकारीब के दौरान कोविड के उसूलों पर अमल को यकीनी बनाएं। हाईकोर्ट ने इस मसले पर अंदरून 2 हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी। इस सिलसिले में आइंदा समाअत 20 फरवरी को होगी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी की गई है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात के रोज़ चीफ जस्टिस एल नागेश्वर राव गैर हाजिर थे। इसकी वजह से समाअत मुलतवी की गई। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत की दरख्वास्त की है ताकि वो यूपी असम्बली इंतखाबात में मुहिम जोई कर सके। यूपी की सीतापुर जेल में तकरीबन 2 साल से कैद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अबूरी जमानत पर रिहा होने के लिए दरख्वास्त दी है। आजम खान और इनकी अहलिया और इनके बेटे को ज़मीनों पर कब्जे, तजावीज़ात और जाली पैदाशी सर्टिफिकेट फराहम करने के मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। बाज़ इनकी बीवी और बेटे को जमानत पर रिहा कर दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुल्क के दस्तूर में तरमीम के बयान पर ज़िला संगारेड्डी के जहराबाद में भीम आर्मी के रियासती सदर और सुधीर प्रेम कुमार, सतीश बलराज, महेश और मोहम्मद यूसुफ व दिगर ने जहराबाद में एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने KCR की ऐसी हरकत पर इन्हें इस्तीफ़ा देने पर जोर दिया और जहराबाद तहसीलदार दफ्तर पहुंचकर एक याददाश्त के जरिए हुकूमत से मुतालबा किया कि KCR अपने बयान को फ़ौरन वापस ले। इस मौके पर पुलिस ने कुछ एहतजाजियों को गिरफ्तार करके जहराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और बादजा इन्हें छोड़ दिया गया। इस मौके पर भीम आर्मी के सीनियर लीडर नरसिम्हा लक्ष्मण और BSP लीडर D प्रेम कुमार सुधीर के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। ఎన్నో కులాలు, ఎన్నో మతాలు, ఎన్నో భాషలు, ఎన్నో తెగలు ఉన్నప్పటికీ భారతదేశాన్ని ఏకతాటిపై నడిపించేది భారత రాజ్యాంగం మాత్రమే. అలాంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగాలను అన్నింటినీ చదివి, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మతగ్రంథాలను అన్నింటినీ చదివి ఈ భారతదేశానికి ఏదైతే అవసరమో అది తీసుకొని ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగాన్ని 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు అహర్నిశలు కృషి చేసి భారతదేశం 1000 సంవత్సరాలైన ఈ రాజ్యాంగం చెక్కు చెదరనట్టు భారత రాజ్యాంగం మంచిదే కానీ అది అమలు చేసే నాయకుడు మంచిది కానప్పుడు భారత రాజ్యాంగం పైన నిందలు అవుతాయని భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆనాడే చెప్పడం జరిగింది. అలాంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని తెలంగాణ సీఎం అయి ఉండి అలాంటి రాజ్యాంగం మీదే ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత KCR సీఎం అయిండు, అల్లుడు మంత్రి అయిండు, కొడుకు మంత్రి అయిండు, బిడ్డ MP MLC కూడా అయింది. అలాంటి కుటుంబ మొత్తం కొలువులు తీసుకొని కూడా ఈరోజు భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనేటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని సమతా సైనిక దళ సంగారెడ్డి జిల్లాగా నేను ఖండిస్తా ఉన్నా. TRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने एक प्रेस मीट करते हुए BJP और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस और BJP ने तवील अरसे तक मुल्क पर हुकूमत की लेकिन दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया।
انہوں نے کہا کہ KCR نے نئے آئین پر بیان دیا تو کانگریس اور BJP کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جبکہ کانگریس اور BJP BR امبیڈکر کی توہین کرتے ہیں اور دلتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر کانگریس اور BJP میں ہمت ہے تو جاری پارلیمانی اجلاس میں دلتوں کے ساتھ کیا کیا گیا ان پر بات کی جائے۔ انہوں نے کہا BJP دھرم کی بنیاد پر بے تکے بیانات دے کر انتخابی میدان میں مہم چلاتی ہے اور دیگر طبقات کے لوگوں کی دل آزاری کرتی ہے۔ جیون ریڈی نے کہا جبکہ KCR سبھی مذاہب کے افراد کو لے کر چلتے ہیں اور وہ سیکولر ہیں۔ మేము తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధిస్తామని చెప్పి వేలాది సార్లు వందలాది సార్లు అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించిన ముఖ్యమంత్రి మా ముఖ్యమంత్రి మా ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆరిజం ఉంటే మేము అంబేద్కరిజాన్ని ఫాలో అవుతా ఉన్నాం। అంబేద్కర్ అడుగుజాలలో నడుస్తూ ఉంది ఈ రాష్ట్రం। పేదల కోసం సంక్షేమం అభివృద్ధి ప్రతి ఇంట్లో సంక్షేమం ప్రతి కంట్లో అభివృద్ధి జరిగే విధంగా చూస్తా ఉన్నాం। దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ లేని విధంగా వైన్స్లతో పాటు పేద దళితులకు మెడికల్ షాపులలో కూడా రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాం। మార్కెట్ కమిటీల్లో కూడా అదనంగా రిజర్వేషన్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రం మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। ఇట్లాంటి విధానాన్ని పట్టుకొని ఇవాళ మేము భీమ్ దీక్ష చేస్తాం, మేము ఇంకో రచ్చకెక్తామంటే దళితులు నమ్మే పరిస్థితులు లేరని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఎప్పుడు అయితే ఖలిస్తాన్ లేకపోతే పాకిస్తాన్, ఇటు అయితే జమ్మూ కాశ్మీర్, అటు లేకపోతే చైనా వార్। హైదరాబాద్లో ఎన్నికలుంటే సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, ఆర్మూర్లో పసుపు రైతులు ఆపితే ఖలిస్తాన్ తీవ్రవాదులు, లేకపోతే రోహింగ్యాలు, లేకపోతే మత చిచ్చు, లేకపోతే రాజ్యాంగం మీద రాద్ధాంతం చేయడం। చివరికి ఈరోజు ఇంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల వారు దిగజారు। ఎస్ పేదల కోసం ఇప్పుడు దళిత బంధు లాంటి పథకాన్ని పెడతా ఉన్నాం। ఈ రాష్ట్రంలో 20,000 కోట్లు ఇస్తున్నాం। ఇదే 18 బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కావచ్చు రాజ్యాంగం మార్చుకుంటే ఆ రాజ్యాంగంలో దళిత బంధు వచ్చే విధంగా, దళితుల కోసం 50,000 కోట్లు ఒక చిన్న రాష్ట్రంలో వచ్చే విధంగా, యావత్ దేశంలో 28 రాష్ట్రాల్లో వచ్చే విధంగా రాజ్యాంగాన్ని మార్చుకుందామని చెప్పాను। తప్పేముంది? ఈ రాష్ట్రంలో రైతులకు ఇచ్చిన రైతు బంధు దేశమంతా రావాలా, దేశంలో ఉన్నటువంటి దళిత రైతులకు కూడా రావాలా, అది రాజ్యాంగబద్ధం చేద్దాం అని చెప్పి కొత్త రాజ్యాంగాన్ని రాసుకుంటామని దాని తప్పేముంది? 105 సార్లు అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా ఈ రాష్ట్ర రాజ్యాంగాన్ని ఆర్టికల్ 368 ప్రకారం చాలా సార్లు మార్చుకున్నాం। ఇది ఇప్పటికి 105 సార్లు అమెండ్మెంట్ చేసాం। సవరణైనా మార్పైనా రాజ్యాంగం కొత్తగా రాసుకుందామంటే అంబేద్కర్ని పక్కన పెట్టని కాదు। कुरान मजीद तमाम अमराज के लिए शिफा है। कुरान मजीद इंसानी क़ल्ब का नूर है। ये दिल पर तारी होता है तो दिल की दुनिया बदल देता है और तमाम इबादतों में कुरान मजीद की बहुत ज़्यादा फजीलत है। कुरान इंसानों की हिदायत का ज़रिया है। कुरान मजीद को सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ व लाजिम है। बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखे और दूसरों को सिखाए। इन ख़यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह वाक़ बंजारा हिल्स हैदराबाद ने जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम 1 माह की मुहिम आओ कुरान मजीद तजवीज़ से सीखें का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद अल्लाह का वो वाहिद कलाम है जिसका पढ़ना, सुनना, छूना, इसको सही पढ़ने का तरीक़ा सीखना सब सवाब में शामिल है। जामिअतुल मोमिनात की जानिब से 15 साल से तजवीज़ सिखाने की मुहिम चलाई जा रही है जो सिर्फ जामिया में नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर, पंजाब, बिहार, यूपी, केरला के मुख्तलिफ अजला की शाखों के अलावा अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस में ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं। हालात हाज़रा के पेश नज़र इस मुहिम को ऑफ़लाइन और ऑनलाइन तरीक़े से चलाया जा रहा है। तालिबात की सहूलत के लिए तजवीज़ की किताब को उर्दू ज़बान के अलावा रोमन अंग्रेज़ी में शाये किया गया है। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल समद शर्फ़ी उस्ताद जामिया निज़ामिया की दुआ पर इस तक़रीब का अख्तिताम अमल में आया। जामिअतुल मोमिनात बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ पर बहुत हज़ारों की तादाद में लड़कियों को तालीम दी जाती है। वहाँ से PhD भी करते हैं और लोग कुरान भी सीखते हैं। ख़ासतौर से आज उनका 15वां सालाना 1 माह की मुहिम का मतलब 1 महीना मुसलसल उनका एक पूरा तमाम डिस्ट्रिक्टों में और हमारी स्टेट में कुरान सीखने के लिए वो भी तजवीज़ के साथ एक मुहिम शुरू की गई। उसके लिए मैं जामिअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों को ख़ासतौर से हमारे मुफ्ती मस्तान शाह वली साहब मस्तान साहब को और हमारे इमाम साबिर साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन जब तक इंसान दुनियावी तालीम कितनी भी हासिल करे वो दीन की तालीम हासिल नहीं करता अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और ख़ास तौर से जामिअतुल मोमिनात को मैं कई बार दौरा किया हूँ। वहाँ पर लड़कियों को ऐसी तालीम दी जाती है उसकी मिसाल बहुत कम है। वहाँ पर बेहिसाब लड़कियाँ डिस्ट्रिक्टों से आती हैं, बड़े
अदर स्टेट से भी आती है लड़कियाँ, वहाँ उनके पास रहकर हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करती है। और दीनी तालीम हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लड़कियों की तालीम लड़कों से तालीम बहुत बेहतर है लड़कियों के लिए, क्योंकि एक लड़की जब तालीम याफ्ता होती है तो एक ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है, वो अपने बच्चों को तरबियत दे सकती है, घर का माहौल अच्छा चला सकती है, सास से बहू का रिश्ता अच्छा जो मोहब्बत से, प्यार और मोहब्बत से अपने ससुराल के अफराद ख़ानदान की खिदमत कर सकती है। ये तालीमात मिलती है तो जामुतुल मोमिनात में मिलती है। मैं उनके ज़िम्मेदारों को और हमारे मुफ्ती मस्तान साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये सारी की सारी टीम काफ़ी ज़माने से बेलौस लोगों को तालीम, बच्चों को तालीम दे रही है, उसके लिए हम दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक महीना जो कुरान तजवीज़ के साथ सिखाया जा रहा है उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। खुसूसी दुआ करिए। वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुन राज़िक़ीन वहफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह ताला वज़ीर दाख़िला महमूद अली साहब के सेहत व आफ़ियत से आमीन। उनकी उम्र तरफ़ी अता फरमाए। या अल्लाह सारे इनके जो मसाइल इनके पास आते हैं वो इंशाअल्लाह कामयाब होते रहते हैं। अल्लाह इनको सेहत आफियत से रख, जामे मकासद में कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह दुश्मनों के दुश्मनों से महफूज रख। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तक़र में मनशियात और नशे से बचाव के लिए जहराबाद पुलिस ने एक मुहिम शुरू की है। आज जहराबाद डीएसपी शंकर राजू ने किसान कमेटी हॉल सुभाषगंज जहराबाद में एक अवामी इजलास मुनक़िद करके नशे के नुकसानात से वाकिफ़ करवाया और कहा कि जर्दा, गुटखा और गांजा जैसी नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करके अपनी कीमती जानों को ज़ाय ना करें। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने नशा आवर अशिया से रियासत को निजात दिलाने के लिए 2 मरतबा इजलास मुनक़िद किया है। कहा क्योंकि यह हमारी रियासत की आवाम के लिए निहायत नुकसानदा है। डीएसपी ने इंतबाह दिया कि गांजे की तिजारत और इसमें ताउन और इसकी हिम्मत अफजाई करने वालों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। इस इजलास में तहसीलदार जहराबाद मंडल नागेश्वर राव, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस महकमे आबकारी अशोक कुमार और सब इंस्पेक्टर जहराबाद टाउन के श्रीकांत ने भी खिताब किया। इस मौके पर एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रवीणा के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे डीजीपी गारू गौरव एसपी गारी आदेशाల మేరకు ప్రతి మండలంలోని సర్పంచులకు, ఎంపీటీసీలకు మరియు పౌరులకందరికీ కూడా గంజాయి మత్తు పదార్థాల వల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రయోజనాలు ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో అందరికీ తెలియపరచాలని చెప్పేసి గంజాయి అమ్మినా, రవాణా చేసినా, ప్రోత్సహించిన కఠినమైన శిక్షలు ఉంటాయి. గంజాయి సాగును ప్రోత్సహించొద్దు, అమ్మకాన్ని ప్రోత్సహించొద్దు, గంజాయి సేవించడం ప్రోత్సహించదనే ఉద్దేశంతో ప్రతి మండలంలో మా ఎక్సైజ్ శాఖ వాళ్ళు, రెవెన్యూ శాఖ వాళ్ళు, వ్యవసాయ శాఖల వాళ్ళు అందరి సమన్వయంతో ఇటు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసేసి అందరికీ అవగాహన పరిచిన తర్వాత ఈ యొక్క గంజాయి సాగు చేసిన, రవాణా చేసిన, అమ్మిన కఠినమైన శిక్షలు ఉంటాయి, పీడీ యాక్ట్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో అందరికీ తెలియపరిచి గంజాయి రహితంగా, గంజాయి రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో, గంజాయి రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ఎస్పీ గారు మా రమణ కుమార్ గారు ప్రతి మండలంలో ఇటువంటి మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేయమని చెప్పారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మొగడంపల్లి మండలంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి గంజాయికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వారికి రహస్యంగా వారి పేర్లు ఉంచుతాయి, వారికి తగిన పారితోషికం కూడా ఇవ్వబడుతుంది. కాబట్టి గంజాయిని ప్రోత్సహించకండి, గంజాయి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. గంజాయి రహిత రాష్ట్రంగా, గంజాయి రహిత జిల్లాగా, గంజాయి రహిత శాసనసభ నియోజకవర్గంగా ఉందామనే ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క పోరాటంలో మీరు అందరూ కూడా మాకు అందరికీ సహకరించాలని చెప్పేసి మరీ కోరుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. भैंसा में कुल जमाती कायदीन जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, NSUI और दलित तबके के मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भैंसा बस स्टैंड के रूबरू वाक़ अम्बेडकर मुजस्समा अहाते में एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुल्क के दस्तूर में तरमीम के बयान की शदीद मुखालिफत करते हुए इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया और बस स्टैंड के रूबरू KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। बादशाह भैंसा RDO दफ्तर पहुँच कर इस ज़िमन में एक तहरीर याददाश्त पेश की गई।
इस मौके पर कांग्रेस कायदीन जिनमें भीम डोंगरे, श्रीनिवास, सुदर्शन पटेल, अमजद शेख, बीजेपी कायदीन में गौतम, काउंसलर टी श्रीनिवास, शंकर राव, गंगाधर साबिका काउंसलर के अलावा सीपू शेट्टी व दीगर मौजूद थे। अलावा अजी भैंसा डिवीज़न के तमाम मंडलों में ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इसी तरह रियासत के दीगर अजला में भी केसीआर के खिलाफ एहतजाज किया गया। తను విధులు నిర్వహిస్తూ మన రాజ్యాంగానికి అనుకూలంగా మాట్లాడాలా కానీ ఈయన ఈ తాగుబోతు సీఎం చీప్ లిక్కర్ కేసీఆర్ ఏదైతే రాజ్యాంగాన్ని రాత్రికి రాత్రి మార్చేస్తానో ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండు, 1.5 గంటలు మాట్లాడిండు. రాజ్యాంగం మార్చడానికి నీ అయ్య సొత్తా అవ్వ సొత్తా అని నేను అడుగుతున్నా. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి ఎట్లయినావు, నీ బిడ్డ ఎమ్మెల్సీ ఎట్లయింది, నీ కొడుకు మినిస్టర్ ఎట్లయినా అడుగుతున్నా. ఇదే రాజ్యాంగం ప్రకారం నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినావు, నీ బిడ్డ ఎమ్మెల్సీ అయిందని నేను చెప్తా ఉన్నా. రాజ్యాంగాన్ని 35 డిగ్రీలు 5 PhDలు చేసిన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అన్ని దేశాలు తిరిగి అన్ని దేశాల రాజ్యాంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన భారత రాజ్యాంగాన్ని రచయిత చేస్తే అన్ని దేశాలు భారత రాజ్యాంగాన్ని మెచ్చుకొని దాన్ని మెచ్చుకుంటే మీరు ఈరోజు భారత రాజ్యాంగం తప్పుంది, దీన్ని పూర్తిగా సవరణ చేయడానికి ఎంతవరకు కరెక్టు? నువ్వు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలా? ఒకవేళ నువ్వు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పకుంటే ప్రజలందరూ నీకు బహిరంగంగా చెప్పుతూ కొడతారని నేను చెప్తున్నా. ఎందుకంటే నీకు 2 సంవత్సరాలు ఉంది, ఇంకా 2 సంవత్సరాల్లో ఇదే ప్రజల్లారా ఆలోచించండి. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు దళితులకు దళిత బంధు అనుకుంటా 10 లక్షలు ఇస్తా అని హుజరాబాద్ ఎలక్షన్స్లో పెట్టిండు. ఇప్పుడు రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో 10 లక్షలు కాదు, నేను 20 లక్షలు ఇస్తా అంటాడు. ఒక్కోడికి కూడా 10 లక్షలు కాదు, 5 లక్షలు కూడా రావు. కాబట్టి ప్రజల్లో ఆలోచించి ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్చాల్సింది భారత రాజ్యాంగంను కాదు, అక్కడ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావును మార్స్తేనే తెలంగాణ దరిద్రం పోతుందని నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। यूपी में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की कार पर नामालूम अफराद ने की फायरिंग, बैरिस्टर अवैसी रहे महफूज। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में दाखिले से रोक दिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के तमाम तालीमी इदारों में इस माह की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखने की दी हिदायत। आजम खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से मुल्क के दस्तूर में तरमीम के बयान पर केसीआर के खिलाफ जहीराबाद और भैंसा में एहतजाज, केसीआर का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। गांजे की काश्त करने पर किसानों से अराजी जब्त कर ली जाएगी, तेलंगाना हुकूमत का इंतबाह। जहीराबाद ने पुलिस मुहिम में इजलास आम में डीएसपी जहीराबाद शंकर राजू का खिताब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम
HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ज़ायरीन उम्रा के लिए खुशखबरी। उम्रा के आगाज़ के साथ ही 19 जनवरी को रवाना हुए ग्रुप की कामयाबी के बाद उम्रा रवानगी का सिलसिला अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जारी है। फरवरी और मार्च के उम्रा ग्रुप्स की बुकिंग के लिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज से राब्ता करें। हर बुकिंग पर पाएँ शानदार इनामात और पाएँ 1000 रुपये ता 2000 रुपये कैशबैक। अभी राब्ता करें अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बाबू खान स्टेट, बशीर बाग, हैदराबाद। हमारी ब्रांच सकीना कॉम्प्लेक्स, मेहदीपट्टनम पर भी राब्ता किया जा सकता है।